Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 8 from the book First Flight. The name of the chapter is Miss Bill the Otter. Okay, so we were reading about our writer Gavin Maxwell's experiences with his pet otter, and the name of the otter is Miss Bill. Okay, and in today's video we will complete reading with our chapter. So let's begin. After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. Okay, so in the previous video we were reading about his flight journey, his first flight journey. Okay, so हमने पढ़ा था कि that was a big challenge for Maxwell कि वो अपने otter को कैसे ट्रांसपोर्ट करें from बसरा to कैम्यूस फेरना, और हमने पढ़ा था कितना एडवेंचरस, कितना एक्साइटिंग था कि किस तरह से वो otter जो था वो बिहेव कर रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट हैबिचुअल टू बी इन अ बॉक्स, राइट. और हमने वो पूरी जर्नी हमने पढ़ी थी डिटेल में. सो आफ्टर दैट इवेंटफुल जर्नी, सो दैट जर्नी वॉज फुल ऑफ इवेंट्स, फुल ऑफ एडवेंचर, सो वी कैन से फुल ऑफ एक्साइटमेंट. सो आफ्टर दैट जर्नी फाइनली वो लंदन पहुंच जाते हैं, एंड इन लंदन मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट. ओके, सो लंदन में उनका फ्लैट था, ही वॉज हैविंग अ फ्लैट, और अब दे वर बोथ, मैक्सवेल एंड हिज ऑटर बोथ वर इन दैट फ्लैट. ओके, Miss and I remained in London for nearly a month. So now writer is saying that when they reached London finally, so they remained in London for almost a month. Okay, he would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. Okay, so now he is describing his experiences when he was in London with his pet otter. Okay, so what he is saying that when they were in London, that his pet otter, he would play for hours with a selection of toys. Okay, so he was a very playful animal, he was very lovable, very friendly animal, और इसको बहुत प्ले करना बहुत पसंद था. he enjoyed a lot to play, और प्ले करने के लिए he has a selection of toys. Okay, कुछ particular toys थे जिनके साथ he used to play for hours. और कौन कौन से वो toys थे? like ping pong balls. Okay, so ping pong balls हम सबने देखी, इस तरह की soft spongy ball होती है ping pong balls. marbles हमने पहले देखा था, हमने पढ़ा था चैप्टर में that he used to juggles. okay, with marble, वो मार्बल के थ्रू जगलिंग किया करता था, राइट. रबर फ्रूट, इसके अलावा ये रबर के बने हुए, प्लास्टिक के बने हुए जो फ्रूट्स होते हैं, ये भी उसकी फेवरेट टॉयज थे. एंड टेरापिन शेल, इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वन मोर थिंग वॉज देयर, एंड दैट वॉज अ टेरापिन शेल. टेरापिन शेल हियर वी कैन सी इट इज़ अ टर्टल शेल, राइट. हम सबने टर्टल देखे हैं, टॉर्टोइज देखे हैं, सो उनकी जो शेल होती है ये भी उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉय था. इसके साथ भी वो ऑटर खेला करता था. डेट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, और ये जो टर्टल का शेल था, ये जो टेरापिन शेल थे, आया कहाँ से था? सो राइटर इज सेइंग कि ये जो शेल था ये वो लेकर आए थे कहाँ से? इस ऑटर का जो नेटिव मार्शेस था वहीं से इसको लेकर आए थे. सो इन द चैप्टर अर्लियर वी हैव रेड कि जो ऑटर था ये आया कहाँ से था. हमने पढ़ा था कि जब राइटर इराक गए थे, सो वहाँ पे जो मार्शेस थे, स्पेशली जो टिग्रिश मार्शेस था, वहाँ से वो इसे लेकर आए थे. सो उन्हें मार्शेस में ये शेल मिला करते थे, सो वहीं से ये इस शेल को लेकर आए थे. एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ हिज फेवरेट टॉयज, जिसके साथ वो 4 hours खेला करता था. ओके, With a ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. Now writer is describing his particular one game, and that game was with ping pong ball. Okay, so जो ping pong ball थी, इसके साथ में उस ऑटर ने he himself invented a game of his own. Okay, उसने अपने आप ही एक गेम जो था वो इन्वेंट कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था, और ये ऐसा गेम था that could keep him engrossed for up to half an hour at a time. engrossed means interested. okay, और we can say keep busy. तो एक ऐसा गेम था जिसमें वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक बिजी रहता था, हाफ एन आवर तक वो उसी गेम में इंटरेस्ट लगा के रखता था, उस गेम को वो इंटरेस्टिंग लगा करता था. ओके, सो क्या वो गेम था? सो राइटर डिस्क्राइबिंग द गेम. अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, सो दैट द लिड वैन क्लोज्ड. सो राइटर बता रहे हैं कि ही वॉज हैविंग वन सूटकेस, और ये जो सूटकेस था इसे वो अपने साथ
इराक लेके गए थे। ओके, सो इन द चैप्टर वी हैव रेड दैट ही वेंट टू इराक, और इराक से ही वो इस ऑटर को लेके आए थे। सो जब वो इराक गए थे सो इस सूटकेस को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे व्हेन ही वाज ऑन हिज जर्नी बैक होम, व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू हिज होम, और वी कैन से व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू लंदन, तब ये जो सूटकेस था ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। ओके, सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड, और सूटकेस का जो लिड था, इसकी जो लिड थी वो भी डैमेज हो गई थी, और इसीलिए जब इस सूटकेस के लिड को क्लोज किया जाता था रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो इस तरह से डैमेज हो चुका था कि इसकी जो लिड थी जब उसे हम बंद कर देते थे सो वहाँ पे एक तरह का स्लोप बन जाता था फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब स्लोप क्या होता है हम सबको पता है। सपोज ये एक सूटकेस है, ओके, और ये इसका हम कह सकते हैं ये इसकी लिड है। सो इसकी लिड जो थी ये एक तरह का स्लोप बना रही थी, यानी कि एक एंड से ये हाई था और सेकेंड एंड से इट वॉज लो, तो यहाँ पे एक तरह का ये स्लोप बन रहा था। इस तरह से सूटकेस डैमेज हो चुका था। ओके, मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। अब जो मिस था ही वाज सो इंटेलिजेंट कि उसने ये चीज़ फिगर आउट कर ली थी, उसने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली थी कि अगर वो अपनी पिंग पोंग बॉल को कहाँ रखता है, हाई एंड पे रखता है। ओके, इन दोनों में से हाई एंड कौन सा है, ये है। सो उसने ये चीज़ फिगर आउट कर ली थी कि अगर वो अपनी बॉल को हाई एंड पे रखेगा तो क्या होगा, वो बॉल जो है वो रोल करती हुई अपने आप सेकेंड एंड पे आ जाएगी। ओके, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्लोप अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे और वो भी कोई राउंड शेप की बॉल है सो वो रोल करती करती सेकेंड एंड तक अपने आप आ जाएगी, और ये चीज़ जो मिसबिल ने फाइंड आउट कर ली थी। ओके, तो वो क्या करता था, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, सो ये चीज़ उसने फिगर आउट कर ली थी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप। तब उसका ये एक न्यू गेम बन चुका था, एक ऐसा गेम जो उसने खुद ने ही इन्वेंट किया था। सो वो क्या करता था, वो अपनी पिंग पोंग बॉल को हाई एंड पे रख देता था और फिर ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड। व्हाट इज डैश? डैश मीन्स टू रन एट ग्रेट स्पीड। ओके, तो उसने बॉल को यहाँ रखा और जब तक बॉल यहाँ से रोल होते हुए इस एंड तक जाती, इस टाइम में मिसबिल क्या करता, वो खुद हाई स्पीड से यहाँ पहुँच जाता, सेकेंड एंड पे पहुँच जाता, और फिर टू एम्बुश इट्स अराइवल, ताकि जब बॉल यहाँ तक पहुँचे तो वो क्या कर पाए। एम्बुश मीन्स टू अटैक सडनली, राइट, यानी कि वो उसको सडनली कैच करने के लिए बॉल के पहुंचने से पहले ही वो यहाँ से यहाँ इस एंड तक पहुंच जाता। हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग, और वहाँ जाके वो कैसे बैठ जाता। क्राउचिंग मीन्स सिट विथ बैंड नीज, अपने नीज को बैंड करके वो यहाँ बैठ जाता और वेट करता कि बॉल कब यहाँ से इस एंड से हाई एंड से लो एंड तक आए टू स्प्रिंग अप, और जैसे ही बॉल यहाँ तक आती वो स्प्रिंग अप एकदम से जंप करके वो बैठ जाता था एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और ऐसे रिएक्ट करता जैसे कि ही इज सो सरप्राइज, ही इज so shocked, grab it, then he would grab the ball, he would hold the ball and trot off with it to the high end once more, और फिर उस बॉल को लेके he would trot off means he leave, okay, वो फिर से हाई एंड तक चला जाता था। so this was the game जो उसने खुद ने ही इन्वेंट किया था। ओके, सो वो रिपीटेडली बार बार यही करता था, वो हाई एंड पे बॉल को रखता और जब तक बॉल हाई एंड से लो एंड तक आती थी वो स्पीडली अपने आप से पहले ही, मतलब बॉल से पहले ही वो चला जाता था एंड देन ही यूज्ड टू वेट फॉर द बॉल, और जैसे ही बॉल आती वहाँ तक आती वो उस तरह से रिएक्ट करता लाइक ही इज सो सरप्राइज्ड, ही इज सो शॉक्ड, एंड देन ही वुड ग्रैब द बॉल एंड देन अगेन वन मोर टाइम ही वुड प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड। ओके, सो दिस वॉज द गेम दैट वुड कीप हिम बिजी फॉर ऑल एटलीस्ट हाफ एन आवर एट अ टाइम। ओके, सो ये गेम उसको इतना इंटरेस्टिंग लगा करता था कि एक बार में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वो कंटिन्यूसली यही गेम खेलता रहता था। ओके, outside the house I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. Now next writer is saying that ये गेम तो कैसा था, inside the house वो खेला करता था। Now outside the house जो राइटर थे वो उसको एक्सरसाइज करवाया करते थे। precisely means exactly as if he had been a dog, जैसे कि वो एक ऑटर ना हो और बल्कि क्या हो, rather than he is a dog. Okay, so हमने पढ़ा था पहले that earlier writer was having a dog as a pet, और जो डॉग्स होते हैं उनको
को डेली वॉक करवाना, डेली एक्सरसाइज करवाना इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर गुड हेल्थ। ओके, सो जितने भी डॉग्स होते हैं, आप सबने देखा होगा जिनके पास भी पेट डॉग होते हैं, उनको डेली वॉक पे लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ प्ले करना, खेलना इज़ वेरी गुड फॉर देयर गुड हेल्थ, राइट। सो जिस तरह से एक डॉग को डेली एक्सरसाइज कराते हैं, वॉक पे ले जाते हैं, सो राइटर की वही हैबिट थी, बिकॉज अर्लियर ही वॉज हैविंग अ पेट डॉग, बट नाउ जब उनके पास अब एक ऑटर था, सो ऑटर को भी डेली आउटसाइड द हाउस एक्सरसाइज करवाया करते थे। ओके, Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. Now writer is saying कि अपनी जो ये वॉक हुआ करती थी, जो वो कहाँ करते थे, लंदन इसकी स्ट्रीट्स में क्या करते थे। सो ड्यूरिंग दीज वॉक्स जो मिस बिल था, उसने सर्टेन कंपल्सिव हैबिट जो थी वो डेवलप कर ली थी। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स? कंपल्सिव मीन्स हैबिट्स दोज आर इररेसिस्टेबल। ओके, यानी कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप डेवलप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता वो कब हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। इस तरह की कुछ कंपल्सिव हैबिट्स जो थी वो मिस बिल ने डेवलप कर ली थी ड्यूरिंग दीज वॉक्स। ओके, like the ritual of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. Now in this the writer is describing some of the compulsive habits of kids. Okay, जो kids होते हैं, जो children होते हैं, उनमें भी कुछ कुछ compulsive habits होती हैं। आई एम श्योर आप सब में भी कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो आपने ध्यान भी नहीं दिया है, बट दे आर योर हैबिट्स, आपकी हैबिट्स बन चुकी है। इनफैक्ट दे आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं वो हैबिट। तो ऐसे ही कुछ हैबिट्स बच्चों की भी होती हैं। वे बच्चे हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जो या तो स्कूल जाते हुए या स्कूल से वापस आते समय वो क्या करते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। दीज आर द पेविंग ब्लॉक्स। हम सबको पता है जो पेवमेंट होता है, जो चलने के लिए, जो पैदल चलने के लिए रास्ता होता है, वहाँ पे जो ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। सो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ रिचुअल फॉर देम कि वो हर ब्लॉक के बिल्कुल बीच में पैर रखते हैं, राइट। वो ट्राई करते हैं कि चलते टाइम वो इस तरह से चलें कि बिल्कुल सेंटर में वो अपने फीट को रखें। ओके, सेकंड हैबिट क्या है बच्चों की, जो मोस्ट कॉमन हैबिट है, मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। अगर रास्ते में इस तरह की कोई रेलिंग्स आ गई है, आयरन रेलिंग्स आ गई है, सो वो काउंट करते रहते हैं कि वो एवरी सेवेंथ रेलिंग को वो टच करते हुए चलेंगे। ओके, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। ओके, इसके अलावा अगर रास्ते में इस तरह के लैम्प पोस्ट है, ओके, सो वो ट्राई करते हैं कि एवरी सेकेंड जो लैम्प पोस्ट है उसमें से वो क्या करेंगे, पास टू द आउटसाइड। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल राइटर ने हमें दिए हैं कि किड्स में इस तरह की काफ़ी हैबिट्स होती है। सो ऐसी ही कुछ कंपल्सिव हैबिट जो कि सब में होती है। तो वो जो ऑटर था मिस बिल, उसने भी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स अपने आप डेवलप कर ली थी ड्यूरिंग हिज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। ओके, Opposite to my flat was a single-storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. And what was the compulsive habit of Miss Bill that the writer is talking about? वो उसकी हैबिट क्या थी? सो राइटर कह रहे हैं कि उनका जो फ्लैट था लंदन में, उस फ्लैट के ऑपोजिट क्या था, देयर वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। ओके, सो उनके फ्लैट के ऑपोजिट देयर वॉज अ प्राइमरी स्कूल एंड दैट स्कूल वॉज ऑफ अ सिंगल स्टोरीड along whose frontage ran a low wall स्टोन 2 feet हाई। अब वो सिंगल स्टोरी स्कूल था और स्कूल के सामने की जो वॉल थी वो कितनी थी, इट वॉज ऑफ 2 feet हाई वॉल थी वहाँ पे। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मिस वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards। अब मिस बिल की हैबिट क्या बन गई थी, डेली जब वो वॉक पे जाया करता था, सो राइटर कह रहे हैं कि ऑन हिज वे होम, जब वो वॉक से वापस घर आया करता था। ओके, सो ये भी उसकी एक पर्टिकुलर हैबिट थी कि कभी भी घर से जब वो जा रहा है वॉक पे, तब वो ऐसा कभी नहीं करता था, बट ऑलवेज जो वापस लौट रहा था वॉक से जब वो वापस अपने घर आ रहा होता था, तब एवरी टाइम उसकी क्या हैबिट हो गई थी, मिस वो टग मी टू हिज वॉल। मिस जो था वो इस वॉल तक राइटर को टग यानी पुल कर लेता था, जंप ऑन टू इट, और फिर उसके बाद में वो उस वॉल के ऊपर जंप करके चढ़ जाया करता था, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30
yards, और वो जो वॉल थी उसकी लेंथ क्या थी, इट वॉज ऑफ 30 yards. तो उसकी जो फुल लेंथ है उस लेंथ पे ही यूज टू गैलॉप. गैलॉप मीन्स टू रन एट फास्टेस्ट पेस, फास्टेस्ट स्पीड. ओके, सो ही वुड जस्ट जंप ऑन द वॉल एंड देन ही यूज टू रन एट इट्स फास्टेस्ट स्पीड एंड कवर द एंटायर लेंथ दैट वॉज ऑफ 30 yards. ओके, सो दिस वॉज हिज कंपल्सिव हैबिट. उसकी एक ऐसी हैबिट बन चुकी थी जो उसको डेली करना है जब भी वो वॉक पे जाते थे. सो एवरी टाइम जब वो वापस घर आ रहे होते थे तो उसको एवरी टाइम ये करना ही होता था. दिस वॉज वन ऑफ हिज कंपल्सिव हैबिट्स. ओके, to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. अब जब ये कर रहा होता था मिस बिल, जब इस तरह से वॉल पे इतना फास्ट स्पीड में रन कर रहा होता था, तब स्कूल के अंदर जो पुपिल्स होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, और जो स्टाफ यानी स्कूल के स्टाफ मीन्स जो टीचर्स हुआ करते थे, वो सभी भी क्या होते थे, ऑब्वियसली वो सभी बाहर देखा करते थे, मिस बिल के इस रनिंग को देखा करते थे. सो वो क्या हो जाते थे, वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उनका थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता था, उनका जो अटेंशन होता था क्लास में वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता था, बिकॉज वो होपलेस थे, हेल्पलेस थे. वो बिल्कुल बाहर देखा करते थे कि मिस बिल किस तरह से रनिंग कर रहा है. ओके, It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Okay, now writer is saying कि वो कह रहे हैं कि जो एवरेज लंदनर है, यानी कि जो लंदन के सिटीज़न हैं, जो एवरेज पीपल हैं वहाँ के, हो सकता है उनके लिए एक ऑटर को रिकॉग्नाइज करना इतना ईजी नहीं है. ओके, बिकॉज ऑटर जो था वो इतना कॉमन एनिमल नहीं था उस टाइम. सो एक ऑटर को रिकॉग्नाइज करना इतना इजी नहीं था, हर कोई पहचान नहीं पाता था कि ओके दिस इज एन ऑटर. ओके, सो ऑटर को पहचानना इतना इजी नहीं था एक एवरेज लंदनर के लिए. बट राइटर कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो गैसेस क्या करते थे कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है, तो जो वैरायटी ऑफ गैसेस आया करती थी, यानी कि लोग इतने तरह के गैसेस क्या करते थे, इतनी वैरायटी होती थी लोगों के गैसेस में कि ये राइटर के लिए एक काइंड ऑफ सरप्राइज था. ओके, सो उनको ये चीज़ तो अजीब नहीं लगती थी कि वहाँ के लोग एक ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके जो गैसेस हुआ करते थे, द वैरायटी ऑफ गैसेस जो उनके हुआ करते थे, दैट वाज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर द राइटर. ओके, Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stout, mink and others. So writer अब हमें otter के बारे में कुछ information दे रहे हैं, and he is saying कि जो otters हैं वो एक ऐसे group of animals से belong करते हैं जो कि comparatively small है, जिसमें बहुत ज़्यादा animals नहीं है. Comparatively this is a small group of animals and it is called as mustelines. Okay, so एक mustelines नाम का group of animals है, उसमें ऑटर जो है वो बिलोंग करते हैं. और ये जो ग्रुप है इट इज़ शेयर्ड बाय सम अदर एनिमल्स, और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं, लाइक द बैजर, मोंगूस, वीसेल, स्टाउट, मिंक एंड अदर्स. ओके, सो हियर इन द पिक्चर हम देख सकते हैं बैजर को, मोंगूस को, वीसेल को, स्टाउट को एंड मिंक को. सो ये सब वो एनिमल्स हैं हु आर इन दैट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स, जिसमें ऑटर भी बिलोंग करता है. सो ऑटर की पिक्चर हमने देखी है कि ऑटर कैसा दिखता है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दे आर हैविंग द सिमिलर लुक. ओके, लगभग ये वैसे ही दिखते हैं. सो ये सभी जो एनिमल्स हैं ये इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड मस्टलिन्स. ओके, I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter. Now writer is describing his experience कि जब वो ऑटर को लेके वॉक पे जाया करते थे और जो बाकी वहाँ के लोग थे वो देखा करते थे कि राइटर के साथ उनका एक पेट है. सो गैस क्या करते थे कि ये पेट कौन सा हो सकता है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते थे दैट दिस इज एन ऑटर. सो गैस क्या करते थे, और सम ऑफ देम यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, वो डायरेक्ट पूछ लिया करते थे कि ये जो आपका पेट है क्या वो ये एनिमल है, is this that animal, is this that animal. Okay, so writer is saying that he used to face a continuous barrage is a stream, and conjectural questions means questions that are based on some kind of guesses. Okay, so लोग जो थे वो गैस किया करते थे और गैस करके वो अपने क्वेश्चंस पूछा करते थे, और जो वो क्वेश्चंस थे जो राइटर कह रहे हैं कि they used to spread all the mustelin but the otter. so लोग अपने क्वेश्चन में सभी mustelins का नाम ले लिया करते थे, लेकिन वो कभी भी ये
ये गैस नहीं करते थे कि ये एक ऑटर भी हो सकता है। ओके, सो लोग ये क्वेश्चन पूछा करते थे। हमने पढ़ा था अभी कि मसलिन में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, लाइक बेजर, मोंगूज, वीसल, स्टाउट, मिंग। सो लोग ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लिया करते थे दैट इज इट अ बेजर, इज इट अ मोंगूज, इज इट अ वीसल, इज इट अ स्टाउट और इवन इज इट अ मिंग, पर कोई भी ये गैस नहीं कर पाता था कि वो एक ऑटर है। ओके, मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल। आगे राइटर कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन गैस थे वो क्या थे, या तो लोग क्या गैस करते थे ऑटर को, दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ बेबी सील। हम सबको पता है बेबी सील, सील क्या होती है, एक काइंड ऑफ फिश होती है। सो लोगों को लगता था कि ये सील का एक छोटा सा बेबी है। ओके, एंड अ स्क्विरल, या फिर कुछ लोगों को लगता था कि इट्स अ काइंड ऑफ स्क्विरल। ओके, इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, रिड्यूस मी टू गिगल्स। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया करते थे राइटर से दैट इज दैट अ वॉलरस। वॉलरस भी हम सब ने देखा, इट इज ऑल्सो ए सी एनिमल। ये भी एक सी एनिमल है, सी क्रिएचर है, जिसके यहाँ पे हम देख सकते हैं दो लंबे लंबे वाइट टीथ होते हैं। सो ये होता है वॉलरस। सो लोग ये भी गेस कर लिया करते थे दैट इज दिस अ वॉलरस। और जब लोग ऐसा पूछा करते थे, सो राइटर कह रहे हैं कि ये उनके लिए इतना फनी लगता था राइटर को दैट ही स्टार्टेड लाफिंग। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। और एक बार तो राइटर कह रहे हैं कि वंस ही वॉज इन अ डॉग शो, सो व्हेन ही वॉज आउटसाइड द डॉग शो, सो किसी ने ये भी गेस किया कि मे बी इट इज़ अ हिप्पो। ओके, सो लोग सारे गेसेस कर लिया करते थे बट दे वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज एन ऑटर। ओके, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spot and a brontosaur। इसके अलावा और क्या क्या गैसेस हुआ करते थे। सो राइटर आगे बता रहे हैं अ बीवर, बीवर हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ बीवर, अ बेयर कब। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी गैस कर सकते थे दैट इट इज़ अ बेयर कब, इट इज़ अ बेबी ऑफ अ बेयर। और लेपर्ड, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे दैट इट इज़ अ लेपर्ड। अब हम सबको पता है लेपर्ड तो कैसा होता है, उसकी स्किन पे कुछ पर्टिकुलर स्पॉट होते हैं। सो वो लोग जब गैस करते थे दैट दिस कैन बी ए लेपर्ड, सो आगे वो क्या करते थे, अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट। एक ऐसा लेपर्ड जिसके जो स्पॉट हैं वो चेंज हो गए हैं, जिसके जो स्पॉट है वो किसी रीजन से हट चुके हैं, ऐसा ये एक लेपर्ड है। एंड अ ब्रोंटोसॉर, और कुछ कुछ तो यहाँ तक गैस करते थे दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रोंटोसॉर। ब्रोंटोसॉर हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज द ब्रोंटोसॉर। सो इस तरह के बहुत ही वियर्ड गैसेस हुआ करते थे, वैरायटी ऑफ गैसेस मिला करते थे एंड ऑल दीज गैसेस वर लाइक अ सरप्राइज फॉर द राइटर। ओके, मिस वॉज एनी थिंग बट एन ऑटर। सो फाइनली राइटर को ये बात कहनी पड़ रही है आफ्टर द वैरायटी ऑफ गैसेस फ्रॉम द पीपल कि उन सब लोगों के लिए मिस कुछ भी हो सकता था बट एक ऑटर नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी ने भी ये गैस नहीं किया था दैट दिस इज एन ऑटर। उनके गैसेस जो थे दैट वे फुल ऑफ वेराइटीज, बहुत सारे एनिमल्स अपने गैसेस में कहा करते थे बट कोई भी ये गैस नहीं करता था कि ओके दिस इज एन ऑटर। ओके, but the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। Now writer is saying कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा कि आया करते थे, बहुत सारे गैसेस आया करते थे, बट नाउ राइटर कह रहे हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए राइटर हाईएस्ट स्कोर देना चाहेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन को सुन के वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, हाईएस्ट रैंक नंबर 1 रैंक जो देना चाहेंगे, वो क्वेश्चन किसने पूछा था, एक लेबरर ने पूछा था। और एक ऐसा लेबरर जो कि क्या कर रहा था, ही वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। ओके, सो वंस राइटर वॉज गोइंग विथ हिज पेट ऑटर एंड देयर वॉज अ लेबरर हु वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। ओके, I was still far from him when he laid down his stool, put his hands on his hips and began to stare. Okay, so writer जो थे he was going with his otter, और जब उस लेबरर ने देखा राइटर को, तब तो राइटर कहाँ थे, वो काफ़ी उससे फार थे, काफ़ी दूर थे, उसके पास तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन तभी उस लेबर ने राइटर को देख लिया था। तो देखते ही उसने क्या किया, उसके हाथ में जो टूल था जिसकी हेल्प से वो वहाँ पे डिग कर रहा था, उस टूल को उसने एक साइड में रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, और बिल्कुल देखने के लिए उसने अपने हैंड्स अपने हिप्स पे रख लिए, तो वो बिल्कुल ध्यान से वो देखने लगा। एंड बिगेन टू स्टेयर, और वो राइटर को स्टेयर करने लगा, वो पहचानने की ट्राई करने लगा कि ये कौन सा एनिमल चल के आ रहा है, ये कौन सा एनिमल हो सकता है। ओके, एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रॉन्ट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स। अब राइटर
राइटर जब चलते चलते और पास आ गए थे, जब वो उस लेबर की ओर पास आ जाते हैं, सो उसके फेस पे काइंड ऑफ एक्सप्रेशन था, और वो एक्सप्रेशन कैसा था? इट वॉज अ एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रॉन्ट. अफ्रॉन्ट मीन्स ऑफेंस. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा सा नाराज है, वो थोड़ा सा अपसेट है, एंग्री है, और ऐसा राइटर को लगा जैसे कि वो ये क्लियर कर देना चाहता है कि उसके साथ किसी भी तरह के जोक्स ना किए जाए. वो काफ़ी सीरियस, काफ़ी सिंसियर है, एंड नो वन इज़ अलाउड टू प्ले जोक्स ऑन हिम. ओके, आई केम अब्रेस्ट टू हिम. अब राइटर तो चलते जा रहे थे क्योंकि वो तो वॉक करने ही निकले थे. अब वो चलते चलते बिल्कुल उसके अब्रेस्ट मीन्स अलॉन्ग साइड आ गए थे, बिल्कुल उसके पास आ गए थे. ही स्पैट. अब जब बिल्कुल उसके पास आ जाते हैं तब वो लेबर क्या करता है? ही स्पैट. ओके, एंड ग्लेयर्ड, एंड देन ही अगेन यूज्ड टू स्टेयर, एंड देन ग्राउल्ड आउट, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी. और फाइनली वो अपना क्वेश्चन पूछ लेता है जो उसके मन में इतनी देर से था. एंड व्हाट वाज हिज क्वेश्चन? फाइनली वो क्या पूछता है? हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी. सो इतनी देर स्टेयर करने के बाद भी ही वॉज अनेबल कि वो कुछ गैस कर पाए. वो कुछ गैस तक नहीं कर पा रहा था कि इस एनिमल कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है. कोई गैस, कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास. तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने पूछा कि हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी. ये कौन सा एनिमल है, ये किस तरह का एनिमल है, ये क्या है आपके साथ जो चल रहा है. ओके, सो इतना वियर्ड क्वेश्चन उसने पूछा था बिकॉज ही वॉज सो अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज ऑटर. और उसके पास कोई गैस भी नहीं था, वो आसपास भी कुछ भी गैस नहीं कर पा रहा था. सो उसने डायरेक्ट ये पूछा दैट व्हाट इज दैट सपोज टू बी. और इस क्वेश्चन को राइटर कह रहे हैं कि दिस वॉज द हाइएस्ट नंबर 1 रैंक क्वेश्चन, जिसको वो हाइएस्ट स्कोर देंगे. ओके, so students, we have completed the chapter here. This was very interesting, very funny chapter, and we also came to know a lot of information about otter. Now I am sure that अगर आपको भी एक otter रखना है as a pet, so now you have a lot of information कि अगर otter हमें रखना है as a pet, तो हम उसको साथ कैसे रख सकते हैं, उनको क्या पसंद है, वो खाने में क्या खाते हैं. We have all the information related to otter. Okay, so I hope this chapter is very much clear to you all. In the next video we will see the comprehension part and we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.